Hello everyone. Today we will be seeing eating disorder. So as the name suggests, eating disorder it is a mental condition which is characterized by abnormal eating habits and it affect negatively on a individual's physical and mental health. So here in this topic we are going to study what are eating disorder, what are the various classes of eating disorder and how we can treat eating disorder. So before starting the topic, आई वुड लाइक टू मेक यू अक्वेंट अबाउट टू टर्म्स। मैं आपको दो टर्म्स के बारे में बताना चाहूँगी विच यू विल कम अक्रॉस इन दिस स्लाइड्स। फर्स्ट इज बिंज ईटिंग और बिंजिंग एंड सेकेंड इज पर्जिंग। सो फर्स्ट इज बिंज ईटिंग। So binging means consumption of large amount of food in a short period of time. And here the individual is unable to control himself or herself from eating. So binging अगर आपको मैं simple terms में बताऊँ उसका मतलब होता है ओवर ईटिंग विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे जो इंडिविजुअल होता है वो इतना ज़्यादा कंज्यूम करता है फूड, प्लस उसको खुद के ईटिंग पैटर्न में कंट्रोल भी नहीं रहता। वो थोड़े थोड़े इंटरवल्स में बहुत ज़्यादा कंजप्शन करता है फूड का। तो दिस इज़ वॉट बिंज ईटिंग मीन्स ओवर ईटिंग। सेकेंड टर्म आई told you was purging. So purging behavior means in order to maintain a well body shape, the individual often follows activities or behaviors like self-induced vomiting या तो खुद इंड्यूस करेगा वॉमिटिंग, और विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस या तो मेडिकेशंस का यूज़ करके सच एज लैक्सेटिव, वो लैक्सेटिव का यूज़ करेगा। So purging disorder is not clearly defined, but it includes activities or behavior such as over exercising या तो अति में एक्सरसाइज करना, और फास्टिंग या तो एक टाइम पे बिंजिंग करना और दूसरे टाइम पे एकदम नहीं खाना, फास्ट करना। And third is self-induced vomiting, which I have already told you. So these two are the terms which you will come across several times while going through these slides. So starting with the introduction, coming to our topic. Eating disorder are the mental illness which cause serious disturbance in a person's everyday diet. So ultimately ये जो है diet pattern को alter करता है। It can manifest as eating extremely small amount of food, या तो individual जो है extremely small amount में खाएगा, और severely overeating या तो वो overeat करेगा मतलब binging. The condition may begin as just eating too little or too much, but obsession with eating food overtakes the life of a person leading to severe changes. यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो अपनी ईटिंग पैटर्न को लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, या तो अपने बॉडी इमेज को लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो उसके ईटिंग पैटर्न को अल्टीमेटली अफेक्ट करता है, एंड विच कॉजेज सीवियर चेंजेस like physical, emotional, and mental changes in the client. Coming to the definition, so this definition is given in simple terms. An eating disorder is a psychological condition. As I already told you, it is a mental disorder which is characterized by abnormal eating habits. So it is something in which you can see abnormal dietary pattern which may involve either insufficient या तो कम खाना और excessive food take या तो ज़्यादा खाना, to the detriment of an individual's physical and emotional health, ultimately leading to disintegration in physical and emotional health of the client. Let's see the etiological factors of eating disorder. So it is not exactly known with certainty ki what actually causes eating disorder, but there are several factors which can provoke eating disorder. So we are going to see the factors which can influence eating disorder. So first is biological factor, as you can see here. Here first is genetic. So numerous studies have been undertaken which shows the possible influence of genes in the client. So first was genetic, second is biochemical. In biochemical you can see here it is written dysregulation of HPA. HPA is actually hypothalamus pituitary adrenal axis. So ये जो एक्सेस हैं वो आपके ईटिंग बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। तो समवेयर इफ़ अगर उसमें कुछ डिसरेगुलेशन होगा या उसमें कुछ इम्बैलेंस होगा तो वो आपके ईटिंग बिहेवियर को भी हिंडर करेगा। सो eating behavior is in a complex process which is influenced or which is controlled by this HPA axis. So ultimately if इसका dysregulation होगा तो वो आपके eating behavior को भी affect करेगा. And also various neurotransmitter like serotonin, dopamine and norepinephrine has influence on this eating pattern of the client.
Third, you can see influence of leptin and ghrelin. So this leptin and ghrelin, these are the hormones. ये actually hormones है जो कि important factor play करते हैं in weight control. You must have heard about leptin green tea के बारे में आपने सुना होगा. तो ये ultimate weight control करने के लिए help करते हैं, weight reduce करने के लिए help करते हैं. तो ये जो hormones है ultimately इनका मोटो यही है, अपना जो वेट है उसको बनाए रखना. तो कहीं ना कहीं इसका भी इन्फ्लुएंस होता है आपकी ईटिंग पैटर्न में. Next is pediatric autoimmune disorders, especially streptococcal infection. So this is actually unknown कि why pediatric autoimmune disorder कैन कॉज ईटिंग डिसऑर्डर. अब तक ये चीज़ फाइंड आउट नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा माना गया है कि अगर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हुआ है पीडियाट्रिक या चाइल्डहुड टाइम पे, देन इट कैन गिव राइज टू मेंटल इलनेस, स्पेशली ईटिंग डिसऑर्डर. Next, lesions of right frontal or temporal lobe, tumors of brain region. So these two, if any abnormalities of the brain or any lesions, any abrasions or any type of tumor, अगर कुछ ट्यूमर ही प्रेजेंट है ब्रेन में, देन इट कैन ऑल्सो हिंडर ईटिंग पैटर्न इन द क्लाइंट, लीडिंग टू eating disorder. And last is obstetric complication. Obstetric complication means pregnancy time complication. So इसमें अगर उस समय पे एंटीनेटल टाइम पे मम्मी को अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन रहा होगा तो उस चीज़ से भी होने के चांसेस है ईटिंग डिसऑर्डर, लाइक एनीमिया और प्री टर्म लेबर अगर हुआ होगा. तो दीज ऑल आर दी कॉम्प्लिकेशन विच कैन अल्टीमेटली बी अ बायोलॉजिकल फैक्टर फॉर ईटिंग डिसऑर्डर. Coming to the next slide. So in the next slide you can see psychological factors are there. So the various psychological factors which can provoke eating disorder are low self-esteem, feeling of recurrent failure, response to change. Response to change is what? Pubertal change. Puberty related जो changes आते हैं जिसमें एक menstrual time भी आता है गर्ल्स में, इस वजह से भी आपका डाइट पैटर्न चेंज होता है. एंड लास्ट इज रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. अल्टीमेटली स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स अगर आप कोप नहीं कर पा रहे हो, अल्टीमेटली आपको एक एस्केप चाहिए. सो योर ईटिंग पैटर्न ऑल्सो गेट्स चेंज्ड वाइल going through that stressful life situation. So these were the psychological factors that can provoke eating disorder. Coming to the environmental factor, so here you can see चाइल्ड माल ट्रीटमेंट. अगर चाइल्डहुड टाइम पे सेक्सुअल अब्यूज़ या फिज़िकल अब्यूज़ हुआ है या नेग्लेक्ट फेस किया है चाइल्ड ने, या आइसोलेशन, अल्टीमेटली इट कैन गिव राइज टू ईटिंग डिसऑर्डर. हिस्ट्री ऑफ बुलिंग, इट इज़ ऑल्सो सेम. अगर स्कूल टाइम पे बुलिंग, टीजिंग बहुत ज़्यादा अगर फेस किया है इंडिविजुअल ने, देन ऑल्सो चांसेस आर देयर कि मेंटल इलनेस हो सके, अल्टीमेटली ईटिंग डिसऑर्डर हो जाए. नेक्स्ट इज सोशल आइसोलेशन. ये चीज़ भी एक मेजर फैक्टर है फॉर वेरियस मेंटल डिसऑर्डर्स. सो हियर ऑल्सो इट इज़ अ मेजर फैक्टर इन गिव अराइज टू ईटिंग डिसऑर्डर. नेक्स्ट, डिसइंटीग्रेटेड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. इफ़ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं फैमिली में, तो उस वजह से भी इंसान जो है विथ डिफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म ही कैन लीड टू और ही कैन डेवलप मेंटल डिसऑर्डर, that is eating disorder. And last is peer pressure. Peer pressure is shown to be a significant contributor, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो बॉडी इमेज को लेके ज़्यादा कंसर्न होते हैं एज़ कम्पेयर टू आवर फैमिली मेम्बर्स. सो उनका जो एटीट्यूड है अपने बॉडी इमेज को लेके कुछ ज़्यादा ही आपको सुनने को मिलेगा वो कभी ना कभी. सो दीज और इनके साथ रह के हमारा ईटिंग पैटर्न बदलता भी है. जो बाहर का जंक फूड्स वगैरह जो हम खाते हैं वो सारे फ्रेंड्स लोग के साथ ही रहता है. तो जो peer pressure है they also influence the eating pattern of an individual. Ultimately it can also provoke or it can also influence the eating disorder in the client. Then the last etiological factor which is social and cultural factor. So जो चीज़ें यहाँ दी गई हैं, narrow definition of beauty, emphasis on thinness and unrealistic stereotype of what constitute beauty and ideal body as portrayed by media, fashion and entertainment. So I guess this points are more clear to you because ये जो चीज़ है ये आप लोग को ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि जो ब्यूटी का डेफिनेशन है वो यही बोला जाता है कि लीन बॉडी होनी चाहिए एंड फेयर कम्प्लेक्शन होना चाहिए. दिस इज़ वॉट ब्यूटी मीन्स टू सोसाइटी, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट. ये जो है वो एक नैरो डेफिनेशन है. देन एम्फोसिस ऑन थिननेस बोला जाता है, अपन को शुरुआत से ही बोला जाता है कि वेट अपना कंट्रोल करके रखो, वेट कंट्रोल करके रखो. तो अल्टीमेटली सबके माइंड में यही आ गया है कि हाँ
थिन रहना ही हमारे लिए अच्छा होगा. अल्टीमेटली इफ़ आई गेट फैट और आई गेट ओबीस, देन अल्टीमेटली जो लोग हैं मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. एंड लास्ट इज unrealistic stereotype of what constitute beauty and ideal body as portrayed by media, fashion and entertainment. अगर आप बॉलीवुड की दुनिया में, हॉलीवुड की दुनिया में भी जाओगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि अल्टीमेटली जो इंडिविजुअल है विथ परफेक्ट बॉडी, विथ परफेक्ट फेस, ओनली दे आर बीइंग हाईलाइटेड, ओनली दे आर बीइंग प्रमोटेड. तो कहीं ना कहीं सोसाइटी भी वही सारी चीज़ देख के आगे बढ़ती है. तो ये सारी चीज़ों से एक मेंटल इलनेस होने के चांसेस है. अल्टीमेटली इंडिविजुअल अपनी ईटिंग पैटर्न को लेके इसलिए और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है क्योंकि उसको अल्टीमेटली वो ब्यूटी गेन करना है. So these are the etiological factors which can ultimately provoke eating disorder. So in the next slide, here you can see the preoccupation of society with thinness. कि इतना ज़्यादा लोगों के माइंड में है कि अपना ईटिंग पैटर्न मेंटेन करना, नॉट ओनली एडोलसेंट बट ऑल्सो अडल्ट्स, जो मिडिल एज अडल्ट्स हैं उन लोग भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं अपने फिगर को लेके. सो हियर एक सोसाइटी का प्री ऑक्यूपेशन विद थिननेस, न्यूज़ में आया था एक चीज़ कि 1996 की मिस यूनिवर्स जो थी, एक्चुअली हर नेम वॉज एलिसिया. सो ये जो थी, ये जब इन्होंने मिस यूनिवर्स का क्राउन जीता था, शी वॉज क्राउन मिस यूनिवर्स ड्यूरिंग 1996. सो जब उन्होंने मिस यूनिवर्स का क्राउन जीता था, शी गेंड फ्यू वेट, उन्होंने तब फ्यू जो वेट है गेन कर लिया. उस वजह से जो मीडिया का हरासमेंट था वो इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो गई उस सारी चीज़ों से, क्योंकि अल्टीमेटली कोई अपनी इमेज को देखे कुछ बोले तो हम लोग वो इन्फीरियर फील करते हैं. दैट कॉम्प्लेक्स कम्स विद इन अस, वो आ जाता है हमारे अंदर, अपन कुछ नहीं कर सकते. और बीइंग अ सेलिब्रिटी, वो तो जस्ट स्टेपिंग स्टोन्स पे चढ़ी रही थी. एंड देयर ही गॉट ह्यूमिलिएटेड बाय नंबर ऑफ पीपल. एंड दिस आउटरेज, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया ये चीज़ कि अल्टीमेटली शी वॉज फोर्स्ड टू गिव अप हर क्राउन. अल्टीमेटली लोगों ने उसको फोर्स किया कि आप अपना क्राउन गिव अप कर दो क्योंकि आप डिज़र्व नहीं करते हो मिस यूनिवर्स बनने के लिए. एंड शी वॉज टैग्ड एज मिस पिगी, उनको मिस पिगी बोला गया था क्योंकि ओनली बिकॉज शी गेंड वेट, अल्टीमेटली वो थोड़ी सी फैटी हो गई, थोड़ी सी ओबीस दिखने लगी होगी, तो उसके लिए उनका नाम रख दिए थे वो लोग मिस पिगी. तो दिस इज़ वॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी इमेज इज़ टू सोसाइटी. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अल्टीमेटली ईटिंग पैटर्न को लेके बहुत कॉन्शियस कर देती है इंडिविजुअल को. एंड इफ़ दैट ईटिंग पैटर्न इज़ ओवर कॉन्शियस within any individual, then it can give rise to eating disorder. So I hope you understood what are the etiological factor of eating disorder.